میرا بھی یہی دل چاہ رہا تھا کہ میں ختم قرآن کے لیے یہاں آ جاؤں اور حضرت مولانا کے پیچھے میں تراویح پڑھوں، کیونکہ دو باتیں اس میں بہت اہم تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مستند عالم دین ہے، اور دوسری بات ان کی یہ تھی کہ وہ جان چھڑانے والی بات نہیں تھی۔ قرآن کے انداز میں پڑھا جا رہا تھا، اور باقاعدہ طور پر مسجد یا مصلی اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ عبادت کے لیے آ جاتے تھے کہ بیٹھتے، میں نے سنا ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد باقاعدہ طور پر ایک ترویحہ ہوتا تھا، جس کا رواج لوگوں کے صلاحیتوں کو دیکھ کر عام طور پر علماء کرام اس میں تخفیف کرتے ہیں کہ اٹھنے کی، اتنا بیٹھنے کی اتنی سکت نہیں ہوتی، اس لیے اس میں تھوڑی سی تخفیف کی جاتی ہے۔ اور یہاں ہم نے سنا کہ باقاعدہ طور پر اس ترویحہ کا بھی انتظام تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی تھی کہ رمضان ایک بابرکت مہینہ، اور اس میں من قام لیلۃ الصیام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کی راتوں کو ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہو اللہ کے سامنے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سعادت تھی جو کہ ہے اب بھی، وہ لمحات رمضان کے اب بھی موجود ہیں۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک اللہ کی طرف سے ایک دیا ہوا نعمتوں میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب انسان کو پیدا کیا گیا اس وقت یہ کہا، اس کی ضرورت ہے، اسی وقت انسانیت کو جب دنیا کی طرف بھیجا گیا تو اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ اما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ زندگی گزارنے کے لیے میری طرف سے آپ کی طرف ہدایات آئیں گی، اگر ان ہدایات کے مطابق چل کے آؤ گے تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر خوف ہوگا، نہ ان کے اوپر کوئی غم طاری ہوگا۔ خوف آئندہ آنے والی مصیبت کا ہوتا ہے، غم پچھلی گزری ہوئی تکلیفوں کا ہوتا ہے۔ تو یہ شخص تو اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار کے گیا ہے، تو اس کے اوپر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا۔ تو یہ ہدایات اب ان کو ہم جب دیکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ان ہدایات، تو خصوصی طور پر ان ہدایات کا روزوں کے ساتھ تعلق ہے۔ قرآن میں بھی آتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ آپ علیہ السلام پر کو جو تورات دی گئی، جو کتاب دی گئی، تو اس میں موسیٰ علیہ السلام روزے سے تھے۔ 40 روزے آپ کو یاد ہوں گے سب کو، اسی لیے یہودی مذہب کے ہاں اب بھی 40 روزہ رکھنا ان کے ہاں مستحسن عمل ہے، اور 40واں روزہ تو فرض ہی ہے، اور تورات اس روزے کی حالت میں ان کو دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جنگل میں تھے، تو جنگل میں جو انجیل ان کو دی گئی تو آپ علیہ السلام بھی روزے کی حالت میں تھے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، صحف ابراہیم اور جتنے صحیفے ہیں ان کے بارے میں یہی تفصیل آتی ہے کہ یہ صحیفے روزے کی حالت میں ہی اترے ہیں۔ تو قرآن مجید جو کہ آخری کلام ہے اللہ کا، آخری کتاب ہے، اور کلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ما خرج منہ، اللہ رب العزت کی ذات سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں کہ جن کو ہم سرسری لے لیں، یہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ یہ کلام بھی اسی رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ ہدی للناس، کہ لوگوں کے لیے راستہ ہے، ہدایت ہے یہ۔ وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت اور باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے کے لیے نشانیاں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ کلام مجید بھی جو نازل ہوا ہے تو رمضان ہی کے مہینے میں، اسی مہینے میں نازل ہوا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں،
कुरान पाक के बारे में कुरान ही कहता है कि हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये क्या है? मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है। मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? असरता खुंडुमा, ये हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए, परहेजगार जिसका तर्जुमा हम करते हैं उनके लिए, यानी ऐसी हिदायत के जिनको मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगी। ये ऐसी किताब है। अब इस रमजान के बारे में क्या आता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोजा तुम्हारे ऊपर फर्ज किया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुझसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा हासिल कर सको। हुदल लिल मुत्तकीन, लअल्लकुम तत्तकून। अब दोनों में मुनासिबत देखें कि ये रमजान दिया गया है तकवा हासिल करने के लिए। अब तकवा का मतलब क्या होता है? तकवे का मतलब ये होता है, खुलासा मैं उसका बता रहा हूं, कि आप में हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात, जिसको हम कहते हैं ना, मेरी तबीयत मने नहीं, मेरी तबीयत, अपने तबाए, अपनी तबीयत, अपनी नफसी ख्वाहिशात को अल्लाह के अहकामात के ताबे बना के चलना, इसी को कहते हैं तकवा। और अल्लाह ने, देखो, खाना पीना, जायज जिनसी ख्वाहिशात हमारे लिए हलाल थे, हराम नहीं था, ये सब कुछ हलाल था, लेकिन इस महीने में हमें प्रैक्टिस कराई जाती है कि अब नहीं खाना। सुबह अजान हो गई, फजर दाखिल हुई तो मगरिब तक कुछ नहीं खाना, नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? अल्लाह का हुक्म है, ख्वाहिश है दिल की खाने की, मचल रहा है, पकवान तैयार पड़े हैं, लेकिन हम नहीं खा सकते, नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? इसलिए कि मेरा अल्लाह का प्यास लगी हुई है, ठंडा पानी मौजूद है, पी भी सकते हैं, दिल भी चाहता है पीने को, हम नहीं पीते। इसलिए नहीं पीते कि मेरे अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह के इस हुक्म की पाबंदी की मशक कराई जाती है यहां, और फिर पूरी जिंदगी उसको तकवा हासिल होता है। तो रमजान के तकाजों को पूरा करता है, तो उसके लिए फिर ये रमजान तकवा की बुनियाद बनता है, तकवा वाला बनता है, ये मुत्तकी बन जाता है। तो अभी रमजान के दिन हमारे पास मौजूद हैं, तो हम अपनी तिलावतों का, और सिर्फ ये नहीं कि खाना पीना और जिनसी ख्वाहिशात छोड़ दिए, ये तो शरई रोजा हो गया, लेकिन इसके तकाजे भी हैं कि हमारे आंख सही इस्तेमाल हो, हमारे कान सही इस्तेमाल हो, हमारे हाथ सही इस्तेमाल हो, हमारे आज़ाद सर से लेकर पैर तक सारे के सारे अल्लाह के अहकाम के ताबे होकर हम इसको गुजारेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी भर हमारे लिए तकवा की कैफियत हासिल होगी, और बगैर तकवा के जन्नत में नहीं जा सकता। तकवा बुनियाद है। देखें ना, जब इंसानियत को पैदा किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, बात लंबी तो नहीं हो रही, जब इंसान को पैदा किया गया, तो एक नुक्ते की बात बता रहा हूं मैं, तो दो गलतियां करवाई। गलतियां, एक, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि इस दरख्त के करीब भी मत जाओ, ये फल मत खाओ, वाकई सबको मालूम है, और ये गलती करवाई गई, उसने वो दरख्त खा लिया, वो फल खा लिया उसने। एक गलती तो ये हो गई। अब इंसानियत की इब्तिदा हो रही है। दूसरी गलती, शैतान जब आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने के लिए कहा गया, तो शैतान ने हुक्म मानने से इनकार किया। दूसरी गलती, इब्तिदाई दौर में ये दो गलतियां करवाई गई। अब इन दो गलतियों को करवा के पूरी इंसानियत, क़यामत तक आने वाले इंसानियत के लिए सबक दिया गया। ये अपने सामने रखो। आदम अलैहिस्सलाम से गलती करवाई गई, अब वो एक नदामत उसके दिल में आ गई, शर्मिंदगी दिल में आ गई, और उसने अल्लाह के सामने कहा कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्नन मिनल खासिरीन, कि हमारे परवरदिगार, हमने तो अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया, ये गुनाह अपने ऊपर जुल्म है। अल्लाह के हाकिमियत में कोई कमी आ जाती है हमारे गुनाहों से? हम बहुत सारे नेक दीनदार बन जाए तो अल्लाह तो इससे मुस्तगनी है, अल्लाह के बादशाह में कोई बढ़ोतरी हो आ जाती है, उसमें कुछ नहीं होता। अल्लाह तो गनी जात है, न हमारे सजदों की जरूरत है, न हमारी इबादत का वो मोहताज है, न हमारी बंदगी का वो मोहताज है। ये तो सब कुछ हमें नवाजने के लिए है, ये तो हमें नवाजने के लिए अल्लाह ने अहकामात दिए हैं। अब अगर कोई इन चीजों को तोड़ता है तो अपना ही नुकसान करता है, तो जुल्म है अपने ऊपर। तो आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, कोई रीजनिंग नहीं की, दलाइल नहीं दी, कोई दलील नहीं दी, कोई बहस नहीं की, शर्मिंदगी हुई, गलती का एहसास हुआ, फौरन अल्लाह से माफी मांगी और अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों के ताबे बना दिया। तो उसको क्या किया अल्लाह ने? खलीफा बनाया, बाबा आदम
नबी भी थे, खलीफा भी थे जमीन पर, और कामयाब जिंदगी गुजार कर यहां से चला गया अल्लाह के यहां। दूसरी तरफ जो दूसरी गलती हुई शैतान, उसने मंतिक चलाई, उसमें रीजनिंग की, बहस शुरू की। कहा क्यों शैतान, तुझे मेरा हुक्म आया था कि इस आदम के सामने सजदा करने का, तो ये सजदा क्यों नहीं किया आपने, क्यों नहीं किया? शैतान जवाब देता है कि खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आपने आग से पैदा किया है, आग अफजल है, और इस आदम को मट्टी से पैदा किया है। अब मट्टी जमीन की में मिलने वाली चीज है, घटिया चीज है, तो एक आला अदना के सामने कैसे सजदा कर सकता है? अब उसने अकल चलाई। ये आजकल होते हैं ना अकल चलाने वाले, के जमाने में दहरियत की तरफ, इल्हाद की तरफ जो उम्मत ले जाई जा रही है, इन अकल के घोड़े दौड़ाने की वजह से, अकल को गलत इस्तेमाल करने की वजह से। भाई मैं और आप मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमने पढ़ा, तो हमारा ईमान यह है कि अल्लाह का हुक्म बस वो फाइनल है, कि अकल उसके सामने कुछ भी नहीं है। मेरी अकल में आए ना आए, अल्लाह का हुक्म अटल है, चाहे मंतिक उसको समझे ना समझे, फलसफी उसको समझे ना समझे, अल्लाह खालिक है, जो उसने हुक्म दिया है वही मेरी दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए है। यह हमारा ईमान है। लेकिन इस ईमान को खराब करने के लिए आजकल के दौर में फेसबुकी जो मुल्ला निकल आए हैं, आज के जमाने में जो फेसबुकी लोग निकल आए हैं, तो ये एक और भी बात है कि पुराने जमाने में हम किस्सा सुनते थे, बचपन में हमें सुनाया करते थे कि एक आदमी आया और उसने कहा कि थोड़ा बहुत कुछ पढ़ के आया था। अब दूसरे उलमा बड़े बड़े मौजूद थे, तो उन्होंने कहा मेरी तो शोहरत नहीं हो रही, मेरा तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है, मेरा मकाम ही नहीं बन रहा है, तो क्या करूं मैं? तो किसी ने उनको मशवरा दिया कि भाई आप इनसे कहें कि ये जो कलमा पढ़ते हैं ये गलत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गलत पढ़ते हैं, इसमें वाव है, ये मौलवी उस वाव को खा जाते हैं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ये वाव को खा जाते हैं मौलवी लोग। ये मुल्ला ऐसे, ये मौलवी ऐसे, इस तरह के ऐलानात किए, और लाओ अपने बड़े बड़े उलमा को चैलेंज किया, उनको लाओ हमारे साथ मुनाजरा करें, हम उनके साथ बहस करते हैं। तो कहते हैं जब मैदान में आ गए तो खड़े होकर उसने कहा कि भाई बस मेरा काम हो गया, मैं अपना नाम पैदा करना चाह रहा था, वो नाम हो गया, अब सारे मुझे जानते हैं कि फलां आदमी है। ये वाव कहीं नहीं है, ये सही कह रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ मेरा नाम नहीं लिया जा रहा था, तो मैं अपना नाम। तो इस तरह के शोशेस फेसबुकों में आजकल छोड़े जा रहे हैं। कोई हदीस लेकर उसके खिलाफ एक बात छोड़ दी, अब यहां से भी जवाब आ रहा है, वहां से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, उसका तो काम हो गया, वो तो अपनी शोहरत चाह रहा था, वो तो अपने आप को मशहूर करना चाह रहा था, तो बात कहीं से कहीं निकल गई। तो यहां जो दूसरी गलती शैतान ने की, तो उसने वजूहात बताई इसकी, निकला कि अल्लाह ने उसको रांदा दरगाह किया और अल्लाह ने उसको अपने दरबार से निकाला और हमेशा हमेशा के लिए नाकाम हो गया वो। तो ये दो गलतियां करवा के हमें बताया गया कि गलती हो गई, अपनी नफ्स की ख्वाहिशात है, या अल्लाह के हुक्मों के ताबे कर दो तो कामयाब हो जाओगे। और अगर क्यों कैसे इस किस्म की बहस शुरू कर दी, तो फिर क्या होगा कि अंजाम शैतान वाला होगा। ये हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मोहतरम वकील साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, हमारे कदरदान, और हमारे ये कहते हैं ना आमतौर पर ये वकला तबलीग में और दीन की तरफ बहुत कम ही आते हैं, और डॉक्टर हजरात जल्दी आ जाते हैं। तो उसकी वजह ये बयान करते हैं कि ये डॉक्टर हजरात तो हर चीज़ को अपनी आंखों से उनका मुशाहदा हो चुका होता है, मरते हुए लोगों को बहुत देखते हैं, उनका अंदाज़ा है, इसलिए दीन की तरफ। और ये वकला हजरात क्यों, कैसे, कब, इस किस्म के सवालात करते हैं, तो बड़ी मुश्किल ही से दीनदार हो जाते हैं ये। तो अल्लाह का शुक्र है कि वकील साहब, अल्लाह इनका साया, दीनदार हैं, वरना वो कला हजरात बहुत कम ही आ जाते। ये वजह इसकी क्या होती है, क्यों, कैसे, कब, ये क्यों का सिलसिला शुरू कर देते हैं अल्लाह के सामने। जब अल्लाह के सामने इस किस्म की बातें आ जाती है तो आ जाता है। तो ये है खुलासा कि अगर हम तकवा हासिल करना चाहते हैं तो तकवा का तरीका यह है कि हम अपनी तबीयत और अपने मिजाज को अल्लाह के हुक्मों के ताबे बनाएं, उसमें क्यों और कैसे का सवाल न हो, तो तब हम जाके अल्लाह के फरमान बरदार बनेंगे। शैतान ने क्यों और क्यों का लफ्ज़ शैतान ने इस्तेमाल किया तो रांदा दरगाह हुआ।
आदम अलैहिस्सलाम ने क्यों का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, फौरन कह दिया कि मैंने अपने नफ्स की इत्तिबा की थी, या अल्लाह मैं इस पर शर्मिंदा हूं। तो अल्लाह ने उसको नबी भी बनाया, खलीफा भी बनाया और कामयाब होकर जिंदगी गुजारी, कामयाब होकर अल्लाह के सामने चला गया। तो यही हमारे दीन का खुलासा है और यही हमारा कुरान का खुलासा है। इसी का मकसद के लिए रमज़ान हमें दिया गया है। और रमज़ान में भी अब जो आइंदा चलने वाला अशरा है, जिसको इत्र रमज़ान, खुलासा रमज़ान का और नचोड़ रमज़ान का कहते हैं, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताक़रा के रातें रखी हैं। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र है, लैलतुम मुबारका कुरान पाक में उसको कहा गया है। वो रात भी इन 10 रातों में है, इन ताक़रातों में खुसूसी तौर पर है। तो इसके लिए कोशिश करें, जितनी मस्जिदों के हजरात यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, कि वो कोशिश करें कि भाई अगला रमज़ान पता नहीं आएगा या नहीं। रमज़ान आएगा यकीनी है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में आएगा क्या नहीं ये हमें पता, हमारी ज़िंदगी का किसी को गारंटी है। और जिसने एक भी एतिकाफ में जो नहीं बैठा, तो भाई कम से कम ज़िंदगी में एक दफ़ा तो बैठे, वो ज़िंदगी में एक दफ़ा तो बैठे। तो आज अपने घरों में मशवरा करके एतिकाफ की तैयारी शुरू करें। हमारी माओ बहनों से अगर मशवरा हो जाए तो कोई आपके लिए बिस्तर बनाएगा, कोई खाना भेजेगा, तो वो भी इस एतिकाफ के सवाब में शरीक होंगे। उनके साथ मशवरा करके अपने अपनी मस्जिदों में एतिकाफ के लिए बैठेंगे। कोशिश करेंगे सारे। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक हमें दे। बात वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।